So, welcome in our today's lecture. In our today's lecture, we are going to discuss maxima and minima of a function. We have already discussed increasing and decreasing function, which was one of the application of the derivative of a function. Now in today's lecture, we are going to discuss maxima and minima of a function. When the function attains its maximum value in an interval and when the function attains its minimum value in an interval. So मैं कहूँगा कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, what do we mean by maxima या point of maxima? मेरे पास अगर कोई फंक्शन है f of x, it is defined in an interval a comma b. For example, it is the closed interval a comma b. My function is defined in this interval a comma b. Let me see in the So अगर इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट होगा c which is greater than a less than b, means c definitely lies between the end points a and b. मतलब अगर मेरे पास ये इंटरवल है a comma b, a part of the real axis, बीच में एक पॉइंट c है, मैं कहूंगा मेरी फंक्शन जो है इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी when f of c is greater than or equal to f of x for all x belonging to the interval a comma b. मतलब अगर इस इंटरवल में मैं कोई ऐसा पॉइंट c देख पाऊंगा which exceeds every other point of the value of the function lying in between the interval a comma b. आप पूछेंगे सर what do you mean by this? We are not able to understand. मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, I will show you the graphically. मेरे पास एक फंक्शन है. For example, the graph of the function comes out to be like this in the interval a comma b. इस इंटरवल में a comma b graph of the function is like this. तो अगर एक पॉइंट ऐसा मैं देखूंगा c इस इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट c देखा, यहां पर ये जो हाइट है दिस विल बी डेफिनेटली f ऑफ c एंड यू सी दैट अगर मैं और कोई हाइट लूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली हाइट एनी अदर हाइट, ये जो f ऑफ c वाली हाइट है इट एक्सीड्स ऑल अदर हाइट्स इन द इंटरवल a comma b. मतलब अगर मैं ये पॉइंट x लूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू x दिस हाइट विल बी f ऑफ x. So if f of c is greater than f of x or every other height, तो मैं नहीं कहूंगा कि इस पॉइंट c पर ये जो हाइट है इस पॉइंट c पर फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है. द मैक्सिमम हाइट ऑकर्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c. ठीक है. सो दैट इज मतलब यही जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय दिस ज्योमेट्रिकली. इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो फंक्शन है इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट द हाइट at the point x is equivalent to c, और ये जो हाइट है it is greater than every other height lying in between the interval a comma b. So this is what do we mean by the point of minima. इस point x is equivalent to c को मैं कहूंगा maxima, और ये जो height है this called maximum value of the function. So how I will define the maxima and minima of a function? If f of x is defined, formal definition मेरी ये है, is defined in the interval a comma b such that, ताकि मैं इस तरह एक पॉइंट देख पाऊंगा, such that there exists, there exists, हम इस तरह लिखते हैं c lying in between the interval a comma b belonging to the interval a comma b such that f of c is greater than or equal to f of x for all x belonging to the interval a comma b. मतलब ये जो f of c है, ये वाली height at x is equal to c, it is greater than every other height lying in between the interval a comma b, then x is equal to c is called point of maxima. इसको हम कहते हैं point of maxima. वो point of maxima किसका? Maxima of f of x and
the maximum value of the function at x is equivalent to c and the maximum value of fx at x is equivalent to c is वो ये आएगा, that will be f of c. ठीक है, this is what do we mean by the maxima of a function. Let's try an example. मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने. I have the beautiful example like this. f of x is equivalent to मेरे पास है माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10. माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10. मैं ये देखना चाहता हूं ये मेरी जो फंक्शन है किस पॉइंट पर ये अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी. First of all, if I will look at the domain of this function, domain means you have to find the restriction of the x values. ये जो मेरी फंक्शन है f of x, चाहे आप x का कोई भी वैल्यू दे दो, your function f of x, it is always defined. ठीक है. So domain of the function is the whole real line. Whole real line means if you will come from minus infinity and you will travel up to plus infinity, तो पूरे जो x के वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो हमारी फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पर डिफाइंड होगी. देयर इज नो प्रॉब्लम. अब मुझे देखना है x का वो पूरी रियल एक्सीस पर कौन सा वैल्यू है जहां पर मेरी ये फंक्शन जो है अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है. ठीक है, आई विल यूज माय डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई. आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मेरे पास माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर है. फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1 का होल स्क्वायर, it is greater than or equivalent to 0, isn't it? There is no problem. It is greater than or equivalent to 0. ठीक है. फिर मैं अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, what I will get माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर. माइनस 1 इंटू 0 दैट इज 0. मगर जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी टर्न होती है. इट विल बिकम लेस देन और इक्वलेंट. फिर अगर मैं एक और बात करूंगा, मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर. यहां से भी मैं 10 ऐड करूंगा, लेस देन और इक्वलेंट टू 0 प्लस 10. यहां से भी मैं 10 ऐड करूंगा. द इनइक्वालिटी विल रिमेन प्रिजर्व्ड. इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रह जाएगी. और यू विल गेट माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वलेंट टू 10. ठीक है. और आई विल गेट माइनस टाइम्स दिस क्वांटिटी. अगर आप इस क्वांटिटी की ओर गौर से देखेंगे, इफ यू विल ऑब्जर्व दिस लेफ्ट हैंड साइड कीनली, दिस नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स. तो मैं इसके बदले एफ ऑफ एक्स लिखूंगा. ठीक है भाई, मैंने लिख दिया. लेस देन और इक्वलेंट ऐसी. अगर आप एफ ऑफ 10 मतलब 10 देखोगे, दैट इज एफ ऑफ 1. आप देखिए एक्स का वैल्यू 1. एक्स का जब मैं वैल्यू 1 दूंगा, it will become minus times 1 minus 1, that is 0. 0 square is 0 plus 10. 10 minus 0 is 10. So इस 10 के बदले में लिख सकता हूं f of 1. और ये जो आपका x है, it belongs to the interval from minus infinity to plus infinity. Because x का मैं कोई भी रियल वैल्यू दे सकता हूं. So I will come from minus infinity to plus infinity. तो मैंने इस minus infinity और plus infinity में एक ऐसा वैल्यू देखा x is equal to 1, जहां पर f of 1 बड़ा है f of x से. मीन्स दिस f of 1 वाली हाइट जो है, इट इज ग्रेटर देन एवरी अदर हाइट लाइंग बिटवीन द इंटरवल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. मतलब मेरी जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पर ही ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती होगी. बाकी मुझे नहीं पता है मेरी फंक्शन कैसी है, बट एट x इज इक्वल टू 1 माई फंक्शन अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू. Therefore, the maximum value of the function, हम कह सकते हैं हमारी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो 10 आएगा, बिकॉज जो आपकी फंक्शन है f of x इज माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10. देख लीजिए, ये क्वांटिटी जो है इट इज नेगेटिव. दूसरा लॉजिक ऐसा बनता है, ये क्वांटिटी जो है माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. मगर मैंने इसके साथ माइनस साइन रखी है, तो चाहे आप x का कोई भी वैल्यू देते जाइए, वो 10 में से सब्ट्रैक्ट होता जाएगा. मतलब दिस विल बी अ क्वांटिटी लेसर देन और इक्वल टू 10. मगर इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी. ठीक है,
तो मैं ऐसे कह सकता हूं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10 एंड दैट इज अटेन्ड एट, वो मैं कहां पर अटेन करता हूं, मतलब फंक्शन मेरे पास ऐसी थी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 10 मुझे कब मिलेगा, जब मैं x का वैल्यू दूंगा 1, बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0, सो इस क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन आएगा 0, 0 प्लस 10 इज 10. ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10 एंड दैट इज अटेन्ड एट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10. ठीक है, तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं, मतलब बाय द फॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज 10. ठीक है, लाइकवाइज ये एक एग्जांपल थी विच इलस्ट्रेट्स कि व्हाट डू वी मीन बाय द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड व्हाट डू वी मीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. अब आप सोच रहे होंगे कि सर व्हाट डू वी मीन बाय द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू भी होता होगा, ऑब्वियसली दैट ऑकर्स. पॉइंट ऑफ मिनिमा जिसे हम कहते हैं, मिनिमा. लेट्स सपोज अगेन मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड in an interval, कोई इंटरवल में लेता हूं a कमा b. ठीक है, मैंने इंटरवल ले लिया a कमा b सच दैट देयर एग्जिस्ट्स ए पॉइंट c. एक पॉइंट ऐसा इस इंटरवल में एग्जिस्ट होगा, मीन c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a कमा b such that ये जो मेरे पास f of c है, it is greater than or it is less than or equal to f of x where x belongs to the interval a comma b. अब आप पूछेंगे सर कैसे, अब हमको ये डेफिनेशन अभी मतलब we are not able to understand this definition, please make us elaborate the definition that you stated. मैं elaborate करता हूं. डेफिनेशन ये है कि मेरे पास एक इंटरवल है a कमा b जिसमें मैं अपनी फंक्शन को डिफाइन करता हूं. ठीक है, इस इंटरवल में एक पॉइंट c ऐसा ऑकर होता है ताकि ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट है दैट इज लेस देन और इक्वलेंट, या हाइट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वलेंट c इज लेस देन और इक्वलेंट एवरी अदर हाइट. जो कोई भी हाइट इस इंटरवल a कमा b में होगी, my height at x is equal to c is less than those heights. मतलब ऐसे मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मिसाल के तौर पर मैं उसको डिफाइन करता हूं इन एन इंटरवल a कमा b. फॉर एग्जाम्पल आई हैव द इंटरवल दिस इज a एंड दिस इज b. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉइंट c हियर, एक पॉइंट c है और यहां पर हाइट ऑफ द फंक्शन इट विल बी f ऑफ c. हाइट ऑफ द फंक्शन इट विल बी f ऑफ c. और आपको नहीं लग रहा है ये वाली हाइट जो है इट इज लेस देन एवरी अदर हाइट, है ना. मतलब आप देख लीजिए ये जो हाइट है, ये वाली हाइट जिसको मैं ज्यादा बोल्ड कर रहा हूं, आपको नहीं लग रही ये हाइट इन सभी हाइट से छोटी है. जो मैं यहां पर खींच रहा हूं ये सारी हाइट्स इस इंटरवल a कमा b में, ये वाली हाइट सबसे छोटी हाइट आपको दिख रही है. तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास f ऑफ c होगा लेस देन और इक्वलेंट f ऑफ x, मतलब हाइट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c इज लेस देन एवरी अदर हाइट f ऑफ x. ये हाइट फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट x लेता हूं द हाइट विल बी f ऑफ x, ये पॉइंट x लेता हूं द हाइट विल बी f ऑफ x. सो f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ c. मतलब अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू c पर जो मेरी फंक्शन है दैट अटेन्स द मिनिमम वैल्यू, और x इज इक्वल टू c एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ मिनिमा. x is equal to c को मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. एंड मिनिमम हाइट या मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज f ऑफ c. ये मिनिमम हाइट कितनी होगी दैट इज ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ एंड दैट इज f ऑफ c. x इज इक्वल टू c को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ c. सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ द फंक्शन
then you have to find that point. If you are asked to find the minimum value of the function, you have to find corresponding value of the function at x is equal to c. तो ये है. Let's try an example. मैं एक example आपके साथ डिस्कस करता हूं. The example goes like this. Example goes like this. For example, I have the function f of x is equal to, for example, I have the function f of x is equal to x square plus 5. सबसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, indeed if it had been a live class, I would have asked you the question like this. बेटा आप मुझे बताओ कि ये जो मेरे पास फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगा? अगर मैं स्टूडेंट होता क्लास में और मैं जवाब देता सर इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा, ये जो हमारी फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी आएगा, हम नहीं बता सकते व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन यू वुड हैव आस्क्ड मी सर हाउ वुड द फंक्शन विल नॉट अटेन द मैक्सिमम वैल्यू? बिकॉज जितना आप एक्स को इंक्रीज करते जाओ, एक्स स्क्वायर और इंक्रीज होता जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो भी इंक्रीज होता जाएगा. तो मैं कहां कह सकता हूं, मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा f of 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5. 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 5 इज 9. कोई बताएगा सर x इज इक्वल टू 2 नहीं, मैं x इज इक्वल 100 देता हूं. लेट्स टेक x इज इक्वल 100. तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of 100 इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. 100 स्क्वायर वो बनेगा 10,000 प्लस 5, 10,000 प्लस 5. कोई बताएगा सर हाँ पहले तो आ गया था वैल्यू ऑफ द फंक्शन 9, मैंने कहा था ये मैक्सिमम वैल्यू है, मगर जब मैंने x को बढ़ाया और मैक्सिमम वैल्यू आ गया. आप x का वैल्यू 1 बिलियन दीजिए, फंक्शन का और वैल्यू बढ़ जाएगा. आप x का 1 बिलियन 1 दीजिए, फंक्शन का और मैक्सिमम वैल्यू बढ़ता जाएगा. दैट मीन्स I go on increasing x and the maximum value of the function go on increasing. So I can't say what is the maximum value of the function. So here in this case I will say that the function does not have any maximum value, but it can have the minimum value. फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो सकता है. आप पूछेंगे सर कैसे? मिसाल के तौर पर हाँ आप पूछेंगे सर कैसे? ये जो मेरे पास फंक्शन है f of x is equal to x square plus 5, ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, ये जो x स्क्वायर है ये 5 को ऐड होता जाएगा बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी. x स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, मतलब 5 में से तो ये कभी सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, बिकॉज x स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ x. मगर मैं कहता हूं फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो सकता है. मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? जब आप कामयाब हो जाएंगे इस x स्क्वायर को 0 बनाने में, वो तो बन जाएगा. जब मैं x का वैल्यू 0 दूंगा, x स्क्वायर ऑफ कोर्स इट विल बिकम 0 एंड मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 5. बिकॉज अगर आपने x इज इक्वल टू 0 के बगैर और कोई वैल्यू दे दिया, आप पूछेंगे सर नेगेटिव वैल्यू देंगे. लेट्स गिव द नेगेटिव वैल्यू. -1 में दूंगा, f ऑफ -1 आएगा -1 स्क्वायर प्लस 5. ये -1 इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको ऐड होगा बिकॉज -1 स्क्वायर इज +1, 1 प्लस 5 दैट इज 6. ऐड ही हो गया, सब्ट्रैक्ट नहीं हो गया. ठीक है, मैंने नेगेटिव वैल्यू पर ट्राई किया था, मैंने सोचा था शायद ये मतलब 5 से मुझे कम वैल्यू देगा, मगर x स्क्वायर ने उसे पॉजिटिव बना दिया और 5 को ऐड कर दिया, वो बन गया 6. 5 से ज्यादा ही वैल्यू आ गया. तो मिनिमम वैल्यू मुझे हाँ फिर जब आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो तो और ऐड हो जाएगा 5 को, तो मिनिमम वैल्यू मुझे मिल सकता है फंक्शन का, वो आएगा 5 एंड दैट विल बी अटेन्ड जब आप इस x का वैल्यू 0 देंगे. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आएगा? वो आएगा 0, सॉरी दैट विल बी 5 एंड दैट इज अटेन्ड एट x इज इक्वल टू 0. वो इस तरह भी हम ढूंढ सकते हैं. जो आपका x स्क्वायर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब दोनों साइड्स को 5 ऐड करो तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे ही रहेगा. 0 प्लस 5 इज 5. बट इफ यू लुक एट व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 5, दैट्स माई f ऑफ x. वो मेरा f ऑफ x है ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये 5 कब आपको मिलेगा? जब आप x का वैल्यू 0 देंगे, या इन अदर वर्ड्स f ऑफ 0 इट विल बी 5. तो मेरी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो जो
ये फंक्शन है, इसका डोमेन ऑफ कोर्स इट विल गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस डेफिनेशन। फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू आप दीजिए एक्स का, फंक्शन इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट। तो मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर जो कोई भी हाइट लेता हूं एफ ऑफ एक्स, दोज ऑल हाइट्स आर ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो, दोज ऑल हाइट्स आर ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो, लाइक दिस माई एक्स इज इक्वल टू जीरो, all the heights are greater than this height, all the heights are greater than this height. So minimum value of the function, that is f of 0, and that is attained at x is equal to 0. तो मैं कह सकता हूं that x is equal to 0 is the point of minima, and what is the minimum value of the function? That is f of 0, that is f of 0. Very good. So this is what do we mean by maxima and minima of a function. One more technique is there. आप पूछेंगे सर कौन सी टेक्निक अब है? ये तो एक टेस्ट था, दूसरा टेस्ट मेरे पास इस तरह है, डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट, ये टेस्ट मेरे पास है, डेरिवेटिव टेस्ट जिसको मैं कहूंगा जनाब। डेरिवेटिव टेस्ट में आप इस तरह देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए फंक्शन लाइक दिस, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज लाइक दिस, एंड आई एम considering the interval a comma b. So I have taken the interval a comma b. Here in between there is a point c. There is a point c. और आप बताएंगे सर आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ये जो f of c है it is greater than every other height. So x is equivalent to c is the point of maxima of this function. Yes, x is equivalent to c is the point of maxima of this function. Then, मगर if I will look at this point, अगर मैं टेंजेंट टू ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट x is equivalent to c ड्रा करूंगा, वहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी f प्राइम ऑफ c, या आप डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ x को, फिर आप उसमें x is equivalent to c वैल्यू डालेंगे, सो उधर आपको स्लोप मिलेगा f प्राइम ऑफ c। मगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये f प्राइम ऑफ c है स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, आपको नहीं लग रहा ये स्लोप 0 आना चाहिए? आप कहेंगे यस सर, बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, न लाइन को उतरना है ना लाइन को चढ़ना है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट्स स्लोप विल बी 0। अब अगर आप इन द विसिनिटी ऑफ सी जाएंगे, ऑन इट्स लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं इसको टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, व्हाट डू यू थिंक द टेंजेंट ऑफ द स्लोप इज? स्लोप विल बी इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 0, but would it be positive or would it be negative? It would be positive, means मेरे पास जो dy by dx आएगा, on the left of c it will be greater than 0, and on the right of c आप मुझे बताएंगे dy by dx जो मेरे पास होगा it will be less than 0. So कैसे आप बोलोगे this x is equivalent to c is the point of maxima? अब मैं बता देता हूं, if the derivative changes sign from ग्रेटर देन 0 हो गया पॉजिटिव, लेस देन 0 हो गया नेगेटिव, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अराउंड द पॉइंट सी, बट इन द विसिनिटी ऑफ द पॉइंट सी, एंड एट द पॉइंट सी इफ f prime of c is 0, if slope of the tangent is 0, then you will say that x is equivalent to c is the point of maxima. इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर डेरिवेटिव चेंज करेगा ना साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इफ आई विल मूव अक्रॉस द सी एंड एट द पॉइंट सी इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, आई विल से दैट x is equivalent to c is the point of maxima. आप पूछेंगे सर सेम थिंग, डज सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ द पॉइंट ऑफ मिनिमा? लेट अस सी, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मैं यहां पर बना देता हूं लाइक दिस, like this is my x is equivalent to c. सभी बताएंगे सर of course x is equivalent to c is the point of minima, because this height is less than every other height. ठीक है, तो at x is equivalent to c, if you will again draw the tangent, it will be parallel to x axis, therefore dy by dx at x is equivalent to c will be equivalent to 0, because the line is parallel to x axis. So we are comfortable with this thing. Likewise,
Then if in the left of C I will draw the tangent like this, ठीक है, उस वक्त आपके पास dy by dx कितना आएगा, इस टेंजेंट को मुझे उतरना है, इट विल बी लेस देन 0. इफ ऑन द राइट ऑफ द C आई विल ड्रॉ द टेंजेंट लाइक दिस, उस वक्त जो मेरे पास dy by dx आएगा इट इज ग्रेटर देन 0. तो ऐसा हो रहा है, टेंजेंट नेगेटिव से पॉजिटिव अपनी साइन चेंज कर रहा है. इफ आई विल मूव अक्रॉस द पॉइंट C एंड एट द पॉइंट C द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0. सो टेंजेंट का स्लोप जो है, अगर आया टेंजेंट dy बाई डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगर अपनी साइन चेंज करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, if I'll move from left to right around the point C and at the point C, if the slope of the tangent is 0, then I will say that x is equivalent C is the point of minima, and the minimum value of the function it will be f of C. Here in case आप देख लीजिए डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, here डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है. So this is the second technique how to check whether function attains the point of maxima or point of minima at some particular point. तो टेक्निक ये है, you look at the derivative of the function around the point C. If it changes its sign from positive to negative, then it is the point of maxima. And at this point, the derivative of the function must be 0. And if it changes sign from negative to positive, when you will move from left to right across the point C, and at the point C, if the derivative of the function is equivalent to 0, then you will say that x is equivalent to C is the point of minima. ठीक है, तो this was all about the introduction of maxima and minima. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देता हूं, तो वो आप करेंगे टेक्स्ट RD शर्मा से, एंड यू विल मैसेज मी पर्सनली. तो मैं उनका स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, तो वो आप देख लीजिए. So this was all about today's lecture. Hope you understood this lecture. Any doubt and you can ask me directly. Message me, call me. No problem. Thank you very much.